Hello everyone, welcome back to Swift Learns YouTube channel, and you are with me after a long time, right? So now see what we are going to study today after a long time for math, right? What is this math? It's mental abilities test series. So now from today onwards, I am with you for this series, and with me there is Vaishnavi ma'am. We both just show you how to solve math question, mental ability question in a very easiest way, right? So let's start this mental ability series. So this is the first part. I'm with you here with direction sense test. Okay. So let's discuss what this direction sense test is. So now if I ask you how many directions are there? How many directions are there? So the answer come, ma'am, 4 directions are there. What that 4 direction is? Can anybody tell me? Yes. So all who are here with me, tell me what these 4 directions are. These 4 directions are NEWS. So is it's made up of news? So what is that news? And how we write this news is just make two, first of all, a plus sign like this. And now we have to write news in the way like NEWS in a Z way. See, like this. I rotate Z. Alright. So news. So directions का यार आपको जब भी जानना हो. So let's remember the newspaper, right? So it's north, east, west, south, right? So news and आर 4 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. सो मैम आज आप ये क्या बता रहे हो डायरेक्शंस के बारे में और ये क्यों बता रहे हो? तो क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट जिसमें हम सिर्फ डायरेक्शंस की बात करेंगे, शेडोज की बात करेंगे. सो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव. देयर इज objective of each and every class, right? So what are the objectives? Define direction. So in our today's class we are going to define different kind of directions. Then we are going to do problem based on direction sense test. So there are different kinds of questions we are going to do, different kind of problems we are going to solve. Then we are going to do the concept of clock in direction. So clock questions, and here is also shadow questions. Okay, that point is missing. Shadow questions are also there, and then there are some miscellaneous question that is made up of all of them, like shadow question, clock question, direction question. Everything is there. Everything is related to what? Everything is related to direction, and there are 4 direction. We know it very well. So now the major 4 direction, that is news, we know it very well. But do you know if any direction which is fall in between these two, north and east? So there is no need to learn them, not at all. We know it very well. If I'm talking about a direction test, if I'm talking about 4 directions, so it's like this. NEWS news. You know it very well now. NEWS. This chapter is very, very important from examination purpose. From every kind of, for example, if you're sitting for, wait a minute. If you're sitting for a competitive level examination, for that it's also important, right? Now north और east अगर 2 डायरेक्शन है तो इसके बीच में जितनी भी डायरेक्शन होगी इसके बीच this, so this is called north east. Of course there is no need to learn now north and east, so the middle one is northeast. Now tell me north and west, what is this one called? Very good, northwest, ma'am. Right. Now south west, what this all directions called? Southwest. See, and then south east, southeast. So I hope you understand very well the 4 directions. Good. 4 directions, total it's 8, but 8 कैसे होगा आपको पता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट. जैसे जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको अपने आप डायरेक्शंस लर्न हो जाएगी. ऑफ कोर्स न्यूज आपको ऑलरेडी लर्न है, राइट? बट बात करती हूँ अगर मैं दोनों के बीच की डायरेक्शन की, दैट इज नॉर्थ ईस्ट. सो यू नो इट वेरी वेल ना, मेंटली आपके माइंड में आ जाएगा कि नॉर्थ है, ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, दैट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट. सो देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन लेफ्ट अगेन, and then go to the left. In which directions are you now? So let's start. Here I am. Okay, this is me. All right, I am going to north first of all, so it's right. Now see, when I am here, this one is my right hand, this one is my left hand, because I am walking like this, right? I'm walking like this, so this is my left hand. Now
If it is my right hand, what they are saying, turn right. So let me turn right. Now when I turn right, my face is like this and this is my body. My left direction, my right direction. Now then go to the left. Now this time I have to go left. Now which direction is my left direction? This one or this one? Tell me. I go to north, then I took a right turn, then I have to go to the left direction. So that means this side. Now what they are asking, in which direction are you right now? A very easy question. Tell me. Wait, we missed something. Turn a right, then again turn a right. Again we have to turn a right. See, you go to north, then you turn right, then again you have to turn right, and then you have to turn left. So left side is which one? I am like this. So this is my right side, this is my left side. So I have to move like this here in this direction. So what this direction is? East, west, south, north. Easy question. यहाँ पर मैं थी, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन टुवर्ड्स चली थी और अब डायरेक्शन चेंज हो गई है. सो व्हाट इज दैट? ऑफ कोर्स इट्स ईस्ट डायरेक्शन. लेट्स चेक आवर आंसर. It's east only. Okay, so don't forget, read the question carefully, like me also. Okay. All right, so these are the 4 directions we had already discussed about. You know the left side and right side very well. Left hand, right hand. Okay, so आप left hand right hand से learn कर सकते हैं. easiest way आपके लिए होगा वो learn करने के लिए. right hand से जो righty है, right hand है, right handed person है, उन्हें पता है right hand से वो हमेशा लिखते हैं. तो उस अकॉर्डिंग चलना है कि अगर मैं चल रहा हूँ तो this is my right hand and this is my left hand. Always think that the person is you. Whichever name is given doesn't matter. अपने आप को उसकी जगह कंसिडर करो और सोचो अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मेरा हैंड कौन सा है. राइट. वेरियस डायरेक्शन, वेस्ट, ईस्ट, वी नो इट वेरी वेल. हमने ऑलरेडी न्यूज पढ़ लिया है. अच्छा, नाउ इफ आई आस्क, सूरज कहाँ से निकलता है? राइट. सो सन राइजेस फ्रॉम विच डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन. और वो कौन सी डायरेक्शन में डूबता है? सनसेट ऑन वेस्ट डायरेक्शन. सो सिंपल सी बात है, हमें ये भी बहुत ध्यान रखना है कि राइज कौन सी डायरेक्शन में होता है और सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है. क्यों करना है मैम ये लर्न? क्योंकि हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि है शेडो से रिलेटेड. सो शेडो बेस्ड क्वेश्चंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है. नाउ सी, इन द गिवन फिगर P is 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ O. नाउ हियर इज O. P is eastward side and Q is 400 kilometer north. So this is 400, this is 300. What they are asking? They are asking that R, and R is exactly in the middle. R is exactly in the middle. What they are asking? They are asking that the distance between Q and R is. आपको इस Q और इस R के बीच का डिस्टेंस बताना है. अब what they are telling? They are telling that this QR is equals to RP. They are telling QR is equals to RP. Why? Because R is the midpoint. R is the midpoint. मैं बहुत एक्सपैंड करके आपको समझा रही हूँ जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं. सो यू हैव टू बी वेरी क्विक. ओके, दिस इज माई फर्स्ट क्लास विद यू. सो मुझे थोड़ा स्लो पेस पे चलना पड़ रहा है ताकि आपको 100% समझ में आए. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन कुछ है, डाउट कुछ भी आप अभी कभी पूछ सकते हैं मुझसे. फाइन, चलिए. सो QR and RP. अब नाउ लिसन टू मी. दिस इज 400, दिस इज 300 एंड दिस इज 90 डिग्री. अब ना मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ. अभी अगर आपको दिया हुआ है कि आप टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन चल रहे हैं या टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन चल रहे हैं या आप लेफ्ट में उससे राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर आपको एंगल नहीं बताया हुआ है, सो वी ऑलवेज कंसिडर 90 डिग्री एंगल. ऑलवेज कंसिडर 90 डिग्री एंगल. ओके, चलिए. अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, 400, 300, और ये तो हमें पता ही है भाई डायरेक्शन जी की. हम जब मैं बात करूँ ये ईस्ट है, ये वैसे, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का. बहुत इजी सी बात है ये तो. ठीक है, अब आपको पता है 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं. उसमें क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस. सो अब आप इसमें से देख सकते हैं दैट 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन. अब स्क्वायर करने में आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना. अब कैसे होगा स्क्वायर? दिस इज व्हाट? 0 है ना, सो डोंट कंसिडर 0. हमें तो इजिएस्ट वे में लाना है ना, हमें तो इजिएस्ट वे में लाना है इसे. सो 400 स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस
3 3s are 9. What it gives us? 25. So tell me, 25 is the square root of which number? This is h square. तो h निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Square root of 25. It is only 5. So this whole direction is 500. अब जब पूरी डायरेक्शन 500 है, बोला हुआ है कि QR is equals to RP, तो क्या हो जाएगा? 2 package of 250. राइट? सो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 250. दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, so I am giving you the next question. This is for you. Don't think that it's a very big question. It's really a very small question. When you start doing this one now, it's easy to do. All right, so let's start this one. Okay, let's do it together. Okay, fine. So first of all, let's read the question. A man leaves for his office from the house. Let's suppose this is the house. He walks towards east. Now he walks towards east first. Then after moving a direct distance of 20 meter, he turns south. South means now his face is this side. South is this direction. Now he turns to south and walks 10 kilometer. Now he's here now. Then he walks 35 meter towards west. अब we know this side is west and he walks 35 meter. अब देखो यहाँ तक आपको दिमाग लगा लेना है. ये हो गया 20, ये हो गया 15, 35 meter. Now and further 5 meter towards north. Now he walked 5 meters towards north, and when he walked 5 meter towards the north, he turns towards the east direction. East direction, this one, and walk 15. That means this much. Not here this much. Okay, 50. So what they are asking now, they are asking what is the straight distance in meter between his initial and final position. ये इसके हाउस से चला था, उसके और ऑफिस तक पहुंच गया, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? अब आप ना बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये देखो, ये 10 है, ये ओनली 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? वही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा. तो दिस इज 10 minus 5, दैट इज 5. अभी भी डाउट है, यू कैन आस्क इट टू मी राइट नाउ. सो द आंसर इज ओनली 5. सो दिस इज द वे दे आर शोइंग अस हाउ टू सॉल्व. दिस द सेम फिगर जो मैंने अभी आपके लिए बनाया है. तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये भी 10, अब ये 10 है पूरा, इतना 5 है, इतना सा डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 minus 5, दैट इज 5 इज द आंसर. Let's move on to the next. Directions of shadow. अब शेडो चैप्टर में स्टार्ट करूँ ना, उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने ना कुछ चीजें बताना चाहती हूँ. लेट्स डिस्कस दोस थिंग. ठीक है, इसी स्क्रीन को हम यूज करते हैं. आई एम नॉट पेस्टिंग एनी ब्लैक स्क्रीन और एनी व्हाइट स्क्रीन. ओके, लेट मी पेस्ट अ ब्लैक स्क्रीन फॉर यू बोथ द साइड. ओके, नाउ व्हाट मैम इज गोइंग टू टीच अस, लेट्स सी. ओके, नाउ अभी मैंने बताया सन राइज होता है ईस्ट डायरेक्शन से, सनसेट होता है वेस्ट डायरेक्शन में. नाउ व्हाट इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, ओके, टुवर्ड्स द फेस इज टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. नाउ अब हमारे को अगर मॉर्निंग टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग टाइम में जो उस पर्सन की शेडो होगी वो टुवर्ड्स वेस्ट होगी. सिमिलरली इवनिंग टाइम में उस पर्सन की जो शेडो होगी वो टुवर्ड्स ईस्ट होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. If there is any doubt, you can ask it to me. अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया है. 12 noon, दिन के 12 बजे सूरज कहाँ होगा? उस पर्सन के जस्ट सर के ऊपर. तो जब उसकी शेडो बनेगी, वो जो शेडो होगी वो उसके एकदम फीट के जस्ट पास बनेगी, जो कि हमें दिखेगी भी नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब 12 noon के टाइम पर शेडो कहाँ होगी? There is no shadow. ओके, your feet के दम पास पड़ेगी, that means there is no shadow. अभी भी कोई डाउट है, you can ask it to me right now. Everything is clear? Oh, that's really nice. So, अब एक और important question है. अगर ये जो पर्सन है, ठीक है, इनका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में. कौन सी डायरेक्शन में फेस है? नॉर्थ डायरेक्शन में. अब जब इनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और सूरज कहाँ से निकल रहा है? ईस्ट डायरेक्शन से. एनी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, कोई भी डाउट है, पहले अगर आप कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. चलिए आगे बढ़े.
तो इनके लिए सनराइज क्या हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, और सनसेट वेस्ट डायरेक्शन में। सबके लिए यही होगा, डोंट वरी। हैंड की मैं बात कर रही हूँ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। बट अगर इन्हीं पर्सन का जो फेस होगा वो टुवर्ड साउथ होगा, लाइक दिस, ये पर्सन अगर होंगे, सो इनके लिए राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में अपोजिट हो गया, सनराइज हो रहा है एंड राइट डायरेक्शन में सनसेट हो रहा है। अब आप सोचेंगे मैम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी सेम चीज, ठीक है। सो डोंट वरी, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। व्हाट विल बी द डायरेक्शंस ऑफ शैडो। अब हम डायरेक्शंस ऑफ शैडो की बात करते हैं। चलिए सी, आ गए हमारे पास क्वेश्चन। मैंने कहा था ना जैसे क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। ऑन संडे मॉर्निंग जॉन इज मॉर्निंग, सो ऑलवेज रिमेंबर मॉर्निंग। मॉर्निंग है मतलब भाई सूरज कहां से निकल रहा है, ईस्ट से। सनराइज कहां से हो रहा है, ईस्ट से। ही वॉज वॉकिंग ऑन अ पाथ फेसिंग टुवर्ड साउथ। सी एज इट इज क्वेश्चन आ गया, जब समझाया मैंने आपको। उनका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में उनका फेस है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में फेस है। वॉट वॉज द डायरेक्शन ऑफ द शेडो। अब शेडो की डायरेक्शन क्या होगी, अब हमें तो पता है कि सन कहां से राइज होता है, सनराइज होता है ईस्ट से, ठीक है। अब शेडो की डायरेक्शंस कहां पर होगी, जल्दी से बताइए। ऑन हिज लेफ्ट, ऑन हिज राइट, ऑन हिज फ्रंट, ऑन हिज बैक। तो अभी मैंने बताया था जब नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ साइड में सनराइज के टाइम पे लेफ्ट साइड, और सनसेट के टाइम पे राइट साइड, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो हमारी जो शेडो बनेगी दैट इज ऑन द राइट साइड, ओके, क्योंकि शेडो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। सो ये साउथ का हो गया। अब यहां पर साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, फेस साउथ की साइड पर है उनका, और मॉर्निंग का टाइम है। तो अब बताइए कहां बनेगी शेडो, ये कौन सा हैंड है उनके अकॉर्डिंग सोचिए, राइट हैंड, दिस इज द लेफ्ट हैंड। सो शेडो विल बी ऑन which side of the person, shadow will be on the right side of the person। दोबारा समझेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है। कोई डाउट है अभी आप पूछ लेंगे। सी, एक पर्सन है जो कि ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारा ईस्ट से सनराइज होता है एंड वेस्ट पे सन सेट होता है, ठीक है। अब जब ईस्ट पे सनराइज हो रहा है तो ये पर्सन है, ये उनका कौन सा हैंड है, दिस इज द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज द राइट हैंड, एम आई राइट, ये राइट हैंड है। तो अगर यहां से सनराइज हो रहा है तो शेडो कौन साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी, ठीक है। कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर यहीं पर ये पर्सन होते, मैं लिख देती हूं आपके लिए, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए क्या होगा, सनराइज के टाइम पर शेडो बनेगी लेफ्ट साइड, सनसेट के टाइम पर शेडो बनेगी राइट साइड। सिमिलरली अगर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इफ दे आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तो जब फेस होगा टुवर्ड्स साउथ तब सनराइज के टाइम पर यानी कि मॉर्निंग के टाइम पर बनेगा राइट डायरेक्शन में शेडो, और सनसेट के टाइम पर बनेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हमारा सनराइज का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था, कलर चेंज समझाती हूँ आपको। हमारा मॉर्निंग का टाइम था, सनराइज का टाइम था, तो हमारी और हम कौन सी डायरेक्शन चल रहे थे, टुवर्ड्स साउथ चल रहे थे, तो हमारी डायरेक्शन शेडो बनी थी राइट साइड पे। ये आपको लर्न होगा, आपको लर्न भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप आपकी माइंड में सेट हो जाएगी बात, ठीक है। चलिए, ऑन हिज राइट। Now let's move on towards the next question. This question is for my lovely students. One morning, Ayan and Sohan were sitting in a lawn with their books towards each other, with which their backs towards each other. मतलब they are sitting like this, right? My drawing is not good, but मैं आपको understanding के समझा रही हूँ. Towards each other. Sohan's shadow fell exactly towards the left. अब जो सोहन है, ये अयान और सोहन बैठे हुए हैं, और जो सोहन की डायरेक्शन, सोहन की जो शैडो है, सोहन शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर शैडो फॉल कर रही है, ओके। सो विच डायरेक्शन वॉज अयान फेसिंग, सो अयान ने कौन सी डायरेक्शन फेस कर रखी है, जल्दी से बताइए।
बहुत इजी क्वेश्चन है. विच डायरेक्शन वॉज अयान फेसिंग? सोहन की शैडो अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, सोहन की शैडो अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो बताओ कि सोहन कौन सी डायरेक्शन में होगा. अभी समझाया था. लेफ्ट हैंड साइड में अगर शैडो बन रही है सनराइज के टाइम पर, मॉर्निंग के टाइम पर, तो वो कौन सा था? नॉर्थ डायरेक्शन थी. तो अल्टीमेटली हमारे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बताइए अब अयान कौन सी डायरेक्शन में बैठे होंगे? साउथ डायरेक्शन. कोई डाउट? सिंपल सिंपल आंसर. देखिए एकदम करेक्ट आंसर है. दोबारा समझा देती हूँ. ये 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है. चलिए अब इनका जो शेडो बन रहा है वो टुवर्ड्स कौन साइड बन रहा है? लेफ्ट. मैंने बताया था सनराइज की टाइम पे, सनराइज के टाइम पे अगर लेफ्ट में शेडो बन रही है तो दिस इज नॉर्थ साइड पे फेस है. फेसिंग, फेस कौन साइड में? फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड. तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब लेफ्ट साइड में है तो नॉर्थ साइड में अगर इनका फेस है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा सेकंड वाले का फेस. अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं ना, बैक, अपना बैक टुवर्ड्स ईच अदर है उनका. देयर बैक इज टुवर्ड्स ईच अदर, सो दिस इज अ साउथ डायरेक्शन. Fine. I think it's clear to each and every student. Now let's move on towards the direction in clock. अभी तक हमने नॉर्मल डायरेक्शन के क्वेश्चन कर लिए हैं, शेडोज के क्वेश्चन कर लिए हैं. अब हमारे बारी का आती है डायरेक्शंस इन क्लॉक. अब क्लॉक की जब बात आती है, दिस इज द क्लॉक. अब अगर मैं क्लॉक की बात करती हूँ और मैं बोलती हूँ दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ. करेक्ट है, बट हमेशा फिक्स नहीं है. अगर मैं इसी को रोटेट कर देती हूँ तो और मैं दूसरा एंगल देखती हूँ, सो अगर मैं इस एंगल से भी देखती हूँ, ठीक है. अगर हमारी क्लॉक रोटेट है, किसने बोल दिया कि आपका जो 11 है वो नॉर्थ साइड में है, आप बोलते हैं नॉर्थ साइड में, दैट मीन्स उन्होंने क्लॉक को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, तो अल्टीमेटली डायरेक्शंस अपने आप चेंज हो जाएंगी. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. कैसे ध्यान रखना है मैम? डोंट वरी, आई विल टेल यू द क्वेश्चंस. ओके, जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. Alright. A clock is so placed that at 11 a.m. See the same question. Oh my God. So अब हम clock बना लेते हैं, ठीक है. What they are saying? They are saying 11 a.m. The minute hand it's towards north east. 11 a.m. के टाइम पर जो मिनट हैंड है वो टुवर्ड्स क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट. अब आप बताइए, अगर वैसे हम घड़ी में 11 बजाएंगे, पहले वाली एग्जाम्पल को देखते हुए, तो क्या होता है? हमारा ये शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड यहाँ पर रहता है नॉर्थ डायरेक्शन में. व्हाट दे आर सेइंग कि नॉर्थ ईस्ट में होगा, यानी कि उन्होंने क्या किया? घड़ी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, क्लॉक को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है. तो उस केस में क्या हो गया है? उस केस में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है. तो अगर मैं क्लॉक ऐसे बनाती हूँ, एक सर्कल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, मैं ये चीज ड्रॉ करके बता रही हूँ. तो यहाँ पर 12, 6, 3, 9 सब बच्चों को आता है मेरे बनाना क्लॉक. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ठीक है, किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं, सभी क्लासेस के लिए तो आप सबको आता है क्लॉक बनाना. अब ये बोल रहे हैं कि जो 12 है ना, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है. सो दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन. अब इफ दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, सो नाउ दिस इज योर डायरेक्शंस नाउ. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. न्यूज इज लाइक दिस नाउ. थोड़ा सा जो ये चेंज हुआ है मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ. 2 से लेकर 8 तक, लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि हमने ड्रॉ रफली हैंड से बनाया है, थोड़ा सा वो आगे पीछे हो रहा है. सो इट्स ईस्ट, इट्स वेस्ट, इट्स साउथ. अब वो बोल रहे हैं कि जो 12 है वो किस में आ रहा है? जो लॉन्ग हैंड हमारा है, मिनट हैंड जो हमारा है, वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है. अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. यहां तक समझ में आया है ना? नहीं आया अभी पूछ सकते हैं, ठीक है. इन विच डायरेक्शन डज द आर हैंड पॉइंट्स एट 6 PM? तो आपको बताना है कि जो हमारा आर हैंड है वो 6 PM जब होगा, 6 PM जब होगा तो आर हैंड कहां पर होगा? अब 6 PM यहां पर नहीं होगा, टिल्ट करा है, तो 6 PM ये है, ठीक है. अभी कौन सी डायरेक्शन है बताइए? साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन है. सो व्हाट डायरेक्शन इज? इट इज साउथ वेस्ट. सीधा आंसर साउथ वेस्ट. अभी भी डाउट है पूछ सकते हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आप प्रिया मैम से क्लास ले रहे हो, ठीक है. एट 11 AM द मिनट हैंड इज एट 12 which is northeast. Oh, this is the hint of the previous one, so let's discuss the hint also. Then at 6 PM the hour hand will be passing through 6, since the number 12 and 6 are exactly on the opposite side, so that direction is southwest. Okay,
चलिए, इन साउथ वेस्ट देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. हिंट में चाहती हूँ, हाइट चलो रहने दो, नहीं कर रही आपकी हाइट, आप हिंट ले सकते हो, बट यस दिस टाइम आप ही को क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, ओ माई गॉड, द क्वेश्चन इज चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाएंगे लाइक दिस, आपके अकॉर्डिंग. ये हमारी न्यूज चैनल दैट इज NEWS. ओके, चलिए न्यूज डायरेक्शन. नाउ अब वो क्या बोल रहे हैं, दैट द साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ. अब साउथ वेस्ट बनाने के लिए साउथ वेस्ट दूसरे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, आपको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. व्हाट इज दैट, दे आर सेइंग नॉर्थ साउथ वेस्ट, दिस साउथ वेस्ट, दिस वन बिकम नॉर्थ. साउथ वेस्ट क्या बन रहा है हमारा, नॉर्थ बन गया. अब आप खुद बताइए, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट. अब अगर हमारा जो साउथ वेस्ट है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर हमारा जो साउथ वेस्ट है, अगर ये नॉर्थ बन जाएगा, साउथ वेस्ट ही बोला है ना, हाँ, अगर ये नॉर्थ बन जाएगा तो हर चीज चेंज हो जाएगी. ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्लॉकवाइज चलना शुरू करिए, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, देन ये हो जाएगा साउथ, देन ये हो जाएगा साउथ वेस्ट. ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? देन ये हो जाएगा वेस्ट एंड देन ये हो जाएगा ईस्ट. सब कुछ चेंज हो गया, everything is changed now. Now what they are saying, then what is the north east be? अब north east कहाँ पर है, नया वाला north east, पुराना वाला north east, ये रहा, क्या बन गया north east, south. That's the answer. See, easy तरीका है करने का बहुत. कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं. चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास. ओ माय गॉड. Now I with a man, ये वाला हमने भी किया था. No, this is not done. So a man starts from a point. अब a man मतलब मैं खुद हूँ, हमेशा समझना है मैं खुद हूँ जो चल रहा है, ठीक है. A man starts from a point and walks 2 kilometers towards north like this. Turns his right and walk 2 kilometers. Turns right again and walks. चलते जा रहे हैं, ठीक है, नहीं बताया कितना. What is the direction now he's facing? Oh my god, इतना इजी क्वेश्चन. फेस कहाँ है इनका, सबको पता है कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ डायरेक्शन. इजी क्वेश्चन. चलिए आगे चलते हैं. मैं खुद, I stand with my right hand. I stand with my right hand. Here is I and stand with my right hand extended sideways towards south. ओके, सो मैं ऐसे नहीं खड़ी हूं, फिर मैं ऐसे खड़ी हूं. जो मेरा राइट हैंड है वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है. टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल माई बैक इज, जो मेरा बैक है वो किस डायरेक्शन में होगा, बताइए किस डायरेक्शन में होगा मेरा बैक. मेरा राइट हैंड, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, तो मैं ऐसे खड़ी होंगी ऑफ कोर्स. अब मेरा राइट हैंड क्या है, साउथ साइड है. अगर मेरा राइट हैंड साउथ साइड है तो बताइए मेरा जो बैक है वो किस साइड है, इट इज वेस्ट साइड. इजी. अगर सिमिलरली राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड होता तो हम लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग सोचते, तो हम बोलते कि जो बैक है वो ईस्ट साइड में है. बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है ये. नाउ व्हाट हैव वी लर्न टुडे, टेल मी. सो वी हैव लर्न अबाउट द डायरेक्शन. कितनी टाइप की डायरेक्शन होती है, न्यूज, और न्यूज के अंदर ही हमें लर्न की जरूरत नहीं है. इट इज नॉर्थ ईस्ट, इट इज न्यूज. ओके, जेड पैटर्न में आप न्यूज लिखेंगे, NEWS, न्यूज. ऑलराइट. सो जब हमने न्यूज लिखा जेड पैटर्न में तो NEWS, और यहां पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये हमारी 4 डिफरेंट डायरेक्शंस और हो गई हैं, ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था शैडोज के बारे में. शैडोज कैसे बनेगी, इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर आपने फेस किया है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो सनराइज के टाइम पर आपकी जो शेडो है वो लेफ्ट साइड बनेगी, और सनसेट के टाइम पर आपकी शेडो राइट साइड बनेगी. सिमिलरली अगर आपने फेस किया है फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तो इसका ऑपोजिट होगा. इन दैट केस आपका सनराइज के टाइम पर राइट साइड पे शेडो बनेगी एंड सनसेट के टाइम पर लेफ्ट साइड में शेडो बनेगी. नोट कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस टेस्ट वी डिड.
क्लॉक के टाइम पर मैंने आपको बताया कि क्लॉक के अकॉर्डिंग सोचना है. इफ दे आर सेइंग दैट 11 इज नॉर्थ, सो इन दैट केस आपको उसके अकॉर्डिंग टिल्ट करना होगा अपनी क्लॉक को. एंड देन वी डिड मिसलेनियस क्वेश्चन based on our direction test. So I hope you understand this one very well. Thank you so much everyone. We will be there again with you. I'll be there again with you by the math series, mental ability test series. And अब math series में मैं जो लेकर आऊंगी next chapter वो लेकर आऊंगी analogy. So be ready for analogy for the next class. Till then, bye bye everyone. Don't forget to subscribe the channel. Don't forget to like this video right now. I hope we will meet again with all the students. Okay. So yes, please share this to more and more students. Don't forget to share this video. That's really very, very important. All right. Bye everyone. Take care. See you soon.